Hello everyone. Today we are going to learn the living organisms. Okay, now when we are talking about living organisms, we have different systems which is running or which is helping our body to sustain many activities. Okay, so we are first going to start with those systems. First system would be the digestive system. Next is circulatory system. Third will be respiratory system. And the fourth would be excretory system. Okay, now I think it's clear. Digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory systems. So, what does digestive system do? Digestive system क्या करता है? Digestive system helps us to digest the food that we eat. हम जो भी खाना खाते हैं, we chew and eat it, and it is further broken into more smaller pieces, and it's so that it enable the system to digest whatever food we have eaten. That work is done by digestive system, and digestive system after it cut down the food into simpler substance, उसका काम ये रहेगा कि उसके अंदर जितने nutrients है, whatever nutritions is there available in the food that we eat is absorbed by this digestive system. So ये digestive system क्या करता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. ये काम किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम. और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद दैट न्यूट्रिएंट हैज़ टू बी सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तभी हम लोग को एनर्जी मिलेगा. सो दैट वर्क इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. अंडरस्टैंडिंग. सो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कौन होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं. सो दीज ऑल circulation of the nutrients to different parts of the body is done by this circulatory system. Okay, then comes the respiratory system. अब respiratory system क्या होता है? Respiratory system is not only breathing in and breathing out, inhaling, exhaling, ये है respiration. No, that is not alone respiration, that is breathing. Breathing is a part of respiration, जहाँ हम ऑक्सीजन को inhale करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? जादू हो रहा है कोई कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है? नो, इट इज़ नॉट अ मैजिक, बट देन देयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी. ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं, O2 जब हम इनहेल करते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर वो जाता है, तब कुछ तो एक प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर. दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ डन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम. और फिर हमको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से जब बाहर निकलता है और वो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, सो वी थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ वी एक्सेल इट आउट. So that is what respiratory system does. Okay, then comes the excretory system. हमारे खाना खाने के बाद जो nutrients है that is absorbed by digestive system. जो बच जाता है, मतलब जितना चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच जाता है दैट इज़ वेस्ट, कचरा है, दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी. वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन्स बनेगा अगर ज़्यादा टाइम रहेगा. तो उसको टॉक्सिन मीन्स पॉइजन है ना, तो उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना है. सो दैट इज़ डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रोज अवे द अननेसेसरी और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ बॉडी. Okay, so these all four systems go hand in hand so that we run a normal and a healthy life. Okay,
Now we'll see the different labeling here, and then I'll explain you how exchange of gases take place. First of all, in our body, we have nostrils here. Okay, this is nostrils. Okay, this is nostrils. Then next what we have here is the nasal cavity. Okay, this is the nasal cavity. Then this is mouth. I'll write it later. This is pharynx. This is larynx. Okay, then this would be trachea. Okay, this is the lungs. Then we have bronchi. This is bronchi. This is bronchiole, and this is alveoli. The one single is alveolus. I'll teach you what is that. So we'll just quickly label this. Now to label, first this would be mouth. Okay, this is nostrils. Nostrils, everyone know what is nostrils. Inside we have a nasal cavity. एक hollow channel है, नाक से और मुंह से linked होता है ये channel. ये nose से जो channel बनता है वो nasal cavity है. Mouth से थोड़ा इधर आ जाओ तो ये pharynx है. Pharynx is what? Throat. Okay, this is throat. Then we have larynx. Larynx is nothing but voice box, जहाँ से आवाज़ें आती हैं हमारी. Okay, it's a voice box. We have this. This is the, actually this is trachea. This is trachea. Okay, this is lungs. ये जो है ये lungs है. Lungs. Then we have, I hope you all can see this. I'll just rewrite it once again. It's lungs. Okay. Then this would be bronchi. ये देखो ट्रैकिया से होते हुए लंग्स के अंदर दो पाइप्स ऐसे जाते हैं. दिस इज नोन एज ब्रोंकाई. ओके, और ये ब्रोंकाई फिर लंग्स के अंदर जाने के बाद छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है, छोटे छोटे स्टेम्स जैसे. तो उसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल. ओके, ब्रोंकियोल. और इस ब्रोंकियोल इज नाउ कनेक्टेड टू अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर. सैक्स होते हैं छोटे छोटे. तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं एल्वियोली. ALVEOLI, एल्वियोली. ठीक है, ये एल्वियोली. अगर मैंने इसको जूम किया और ये एक सिंगल बैग, वन सिंगल बैग अगर मैंने निकाला, यहाँ जूम किया, आई जूम्ड दिस, और ये एक सिंगल जो एक बैग बनेगा यहाँ पे, ये सिंगल बैग को हम कहेंगे एल्वियोलस. दिस इज सिंगल बैग. इसके अंदर क्या हो रहा है एल्वियोलस में, दिस आई विल बी टीचिंग यू नाउ. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर. इन दिस this would be the nasal cavity from which the air enters. Okay, from which the air enters from nasal cavity. Then we have nostrils. Okay, then we have nostrils, and then we have mouth, and the nostril and the mouth cavity together combines. This is pharynx, that is our throat, and then coming down to larynx, that is the voice box, then coming to trachea. Then it is divided into the lungs. These are the lungs, two lungs. We have two lungs, and then this is, each is known as bronchi, again subdivided into different stems, that is bronchiole. Then bronchiole is connected to the sac like structure which is alveoli, and a single sac we call it as alveolus.
Okay, so now we will be learning more about this. So quickly we'll go ahead. See, this is we, ठीक है, human. This is human. This is human. This is heart, हमारा हार्ट है. This is lungs, lungs. तो अब क्या हो रहा है, ये प्रोसीजर कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाती हूँ. सी, हमारा जो बॉडी है, इट नीड्स एनर्जी टू वर्क. वी रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और जो भी ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें पहुंचना बहुत ज़रूरी है. ओके, that all is very important. So what we can do here is, now we'll give you a brief on how it works. Now I'll just, for an introduction, this red color will indicate pure blood. Pure blood means oxygenated blood. Pure blood is oxygenated blood which has oxygen. And I will use green color marker for impure blood. Impure is deoxygenated blood which has carbon dioxide, which doesn't have oxygen in it. तो अब क्या हो रहा है, हार्ट का काम ये है, हार्ट से प्योर ब्लड गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमन. हार्ट पंप करता है हमारे बॉडी में, सारे पार्ट्स में प्योर ब्लड जाता है. वो ब्लड यूज़ होता है, वो ब्लड यूज़ हो जाता है. यूज़ होने के बाद वो ब्लड फिर से हार्ट में जाता है, इम्प्योर ब्लड. क्यों? ताकि ये प्योर हो, प्योरीफाई हो. लेकिन हार्ट ये काम नहीं करता है प्योरीफाई का. तो वो क्या करता है, इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स में. लंग्स का काम क्या है, ये इम्प्योर ब्लड को प्योर करो. ये प्योर करके उस ब्लड में ऑक्सीजन भर के, मतलब इधर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है ये हमारे बॉडी से निकल के हार्ट में आता है और फिर हार्ट उसको फिर से लंग्स में भेज देता है. एंड देन फ्रॉम लंग्स दीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर निकालो, उसके अंदर ऑक्सीजन भरो. एंड देन द सेम प्योर ब्लड इज टेकन बैक अगेन टू द हार्ट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन टेकन टू द हार्ट और हार्ट उसको पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये साइकिल चलते ही रहेगा. देन हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम एग्जॉस्ट कर देते हैं, यूज़ करते हैं, वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. तो ऑक्सीजन यूज़ होके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है एंड देन अगेन वो इम्प्योर ब्लड गोज टू द हार्ट. हार्ट सेंड्स इट टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. प्योरीफाई करके लंग्स अगेन सेंड इट बैक टू हार्ट एंड हार्ट अगेन पम्प्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो दिस इज द साइकिल विच गोज ऑन. ओके, लेकिन अब हम सीखेंगे कि लंग्स के पास जब ये ब्लड आता है, विच ब्लड, इम्प्योर ब्लड, तो वो किस तरीके से ऑक्सीजन भर के वापस भेज रहा है. हाउ डू दिस प्रोसीजर टेक्स प्लेस. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ. Now if you all see this structure, you will just remember I have taught you कि alveolus मतलब बहुत सारे, alveoli is different sacs जो lungs के अंदर छोटे छोटे bags होते हैं. उसको zoom करके मैंने एक sac निकाला. This is one single sac. This is alveolus. Okay, now in this alveolus what is happening कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और एल्वियोलस ऑक्सीजन को अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहा है. बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है एंड व्हाट इज कमिंग इन इज ऑक्सीजन. सो दिस इज हैपनिंग. सी हाउ डज दिस वर्क. सी हाउ डज दिस वर्क. नाउ दिस इज हार्ट. हार्ट क्या कर रहा है, जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स में भेज रहा है ना. सो दिस इज गोइंग इन हियर. CO2 वाला ब्लड है ये पूरा. CO2 ये ब्लड है जिसमें CO2 है. और देन ये क्या कर रहा है, एल्वियोलस, ये सैक क्या करता है, CO2 को खींच लेता है अंदर और उसको बाहर फेंकता है. उसी को हम एक्सेल करते हैं, वी थ्रो आउट. हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल करते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो दिस CO2 गोज आउट. तो ये ब्लड में जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें CO2 है, दैट इज टेकन इन बाय द सैक
ओके, एब्जॉर्ब्ड बाय द सैक। और ये सैक क्या कर रहा है, इसके अंदर जो ब्लड आगे जाएगा उसमें ऑक्सीजन फिल करके वापस भेज रहा है। तो ये प्योर ब्लड फिर से हार्ट में जाता है और हार्ट उसको हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में भेजता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सी, आई विल जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। दिस alveolus has the intake of O2 and they take out carbon dioxide from this sac. They take out carbon dioxide from this sac. Now the blood which is flowing in, which is coming in from heart, will all have carbon dioxide because they are deoxygenated blood, and this carbon dioxide is absorbed by them, the alveolus, and then they fill in oxygen, make it pure and then send to heart. तो इस तरीके से lungs में बहुत सारे सैक हैं, ऐसे बहुत सारे सैक है। सो एवरी वन इज डूइंग द सेम वर्क। इस तरीके से लंग्स में जाने वाले ब्लड प्योरीफाई होते हैं। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस। ओके, in the next video we will be learning the respiration process in depth. Okay, till then all of you take care of yourself. I have finished this explanation. My name is Sonia Nair, and this syllabus what I am teaching is of class 10. Okay, and I hope you all must have understood the concepts. You all can definitely send me comments or any doubt if you all want to clarify. I'm available, so you all can do that. Thank you so much for watching this video. Kindly like, subscribe and also share with your friends if you really like it. Thank you so much. Bye. All take care.